morning student, you all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I discuss about the exercise of chapter number 17. Yes. So what is your chapter name? The chapter name is Smart Classes. Smart Classes. अभी जो क्लास चल रहा है ये भी स्मार्ट क्लासेस का है ना एग्जाम्पल है कि नहीं? ऑनलाइन में आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो आप, ये स्मार्ट क्लासेस है। पर जो आप रेगुलर स्कूल में पढ़ते थे वो स्मार्ट क्लासेस नहीं था। यस, पर स्कूल में भी अगर आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है तो वो भी एक स्मार्ट क्लासेस का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 17 स्मार्ट क्लासेस का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, देखो ट्रू फॉल्स है। क्या है? ट्रू फॉल्स। तो जो सही है वहाँ ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है वहाँ, जो गलत है वहाँ एफ लिखना। ठीक है, पहला नंबर देखो, इट इज इजियर टू रिमेम्बर इफ समवन रीड्स आउट द टेक्स्ट टू यू। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? पहला नंबर फॉल्स। देन स्मार्ट क्लासेस यूज इंटरैक्टिव एंड विजुअली अट्रैक्टिव वीडियो देखने से अच्छा लगता है ना, दैट इज ट्रू। स्मार्ट क्लासेस आर गुड फॉर ब्राइट स्टूडेंट। फॉल्स। स्मार्ट क्लासेस आर गुड फॉर ब्राइट स्टूडेंट। नहीं, the infrastructure of our schools and colleges are not sufficient to support such form of teaching. Yes, हमारे स्कूल में इतना फैसिलिटी नहीं है स्मार्ट क्लासेस के लिए। स्मार्ट क्लासेस में make the entire learning process too systematic. Yes, स्मार्ट क्लासेस में सब सिस्टमेटिक होता है कि आपका वीडियो जाता है, ऐसे सिस्टमेटिकली वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली सब चलता है। देन क्या है? आंसर द क्वेश्चन। तो हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं क्या करूँगी, डिस्कशन कर लेंगे हम। आप क्या करो, सुन के उसको समझ के लिखो। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, डू यू एग्री? जस्टिफाई। एक पिक्चर बहुत सारा शब्द बताता है क्या? अगर बताता है कैसे, जस्टिफाई करो। उसका आंसर क्या होगा? यस, आई एग्री दैट ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। To remember a thing always becomes easier if it is represented graphically. The enthusiasm and understanding of to remember a thing always becomes easier. Yes, always become easier if it is represented graphically. Then imparting knowledge becomes easier through a picture. And any concept can be made easily accessible and nitty-gritty can be better explained through pictures. Then next number, how are smart classes good for all kind of learners? सभी प्रकार के लर्नर्स हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, वो यंग हो, सभी प्रकार के लर्नर के लिए स्मार्ट क्लासेस बेटर है। कैसे? The biggest advantage of smart classes is that these are good for all kinds of learner. The use of modern technology eases the learning process for all kind of learner. Moreover, the kind of education promote interaction between teacher and student. Such forms of teaching can boost the inquisitive nature of young minds and make learning an enjoyable experience. Yes. Then third number, what advantages do smart classes have over traditional way of learning? Advantages क्या होता है स्मार्ट क्लासेस का? Advantages क्या क्या होता है? So smart classes are use interactive and visually attractive videos and presentation to teach students. These visual lessons are eye-catching and students can easily relate to them. This is because they stimulate audio-visual sense of students and help them store information fast and more effectively. Smart boards have all curriculum related information saved in memory, which can be presented during lectures. Smart boards can take learners on a virtual trip to the deserts of Sahara of the icy peaks of the Himalayas. These visuals are definitely more attractive than description in a textbook. Yes, then question
नंबर 4, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? व्हाट आर सम द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्मार्ट क्लासेस? एडवांटेज पता चल गया, डिसएडवांटेज क्या है सुनते हैं। सुनो, expert on question the practically of this tech-savvy form of education within our traditional system. The infrastructure of our schools and colleges may not support such form of techniques or some form of teaching. Technical faults also pose a major concern. With the cost of education already soaring, this style of teaching might take education beyond the means of a common man. Then next 5 number. Why do some teachers think that smart classes may rob learners of their imagination? Many teachers believe that smart classes will make education too easy for students, with lessons being displayed on a smart board and all ideas sorted them by videos. Teachers fear such methods will rob students of their पावर ऑफ इमेजिनेशन। स्मार्ट बोर्ड मतलब जैसे आपका प्रोजेक्टर में दिखाते हैं बोर्ड में, उसको बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड। देन टीचर्स फियर दिस विल मेक द एंटायर लर्निंग प्रोसेस टू मैकेनिकल विदाउट एनी इमोशन। टीचर्स को ये क्या डर रहता है स्मार्ट क्लासेस में कि इमोशन नहीं रहेगा, बस सब कुछ मैकेनिकल हो जाएगा, सब कुछ मशीन में वो लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ मैकेनिकल हो जाएगा, ठीक है। वो डर टीचर्स को रहता है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि नाउन एंड एडजेक्टिव्स दिया है। अच्छे से देखो, बी नंबर B1 नाउन एंड उसका एडजेक्टिव दिया है। जैसे टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिकल, नेचर से नेचुरल, ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल, लर्नर से लर्नर लर्न्ड, एजुकेशन से एजुकेशनल एंड इमोशन से इमोशनल, ये सब दिया है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नाउन और एडजेक्टिव दिया है, कहाँ कहाँ पे नाउन छूट गया है हम नाउन लगाएंगे उसका, कहाँ कहाँ पे उसका एडजेक्टिव छूट गया है वहाँ पे हम एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक नाउन दिया है वार्मथ, तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा, वार्म। क्या होगा, वार्म का B2, वार्म का होगा वार्म। देन किसका होगा, ओबीडियंट, ओबीडियंस का होगा ओबीडियंट, ओबीडियंस का होगा ओबीडियंस का होगा ओबीडियंट। देन विट का होगा, विट का एडजेक्टिव क्या होगा, वाइड, विट का एडजेक्टिव होगा वाइड। देन कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का क्या होगा, कन्वीनियंट, कन्वीनियंस का एडजेक्टिव क्या होगा, कन्वीनियंट। कन्वीनियंस का एडजेक्टिव क्या होगा, कन्वीनियंट। देन किसका एडजेक्टिव एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का एडजेक्टिव क्या होगा, एफिशिएंट। देन रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट का क्या होगा, रिलक्टेंस, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट फील करते हो नहीं कभी कभी, तो रिलक्टेंस से होगा रिलक्टेंट। देन स्प्लेंडर का क्या होगा, स्प्लेंडरस, स्प्लेंडर का होगा स्प्लेंडरस। देन सिमिलर, किसका होगा सिमिलर, सिमिलरिटी का सिमिलर, सिमिलर, सिमिलरिटी उसका नाउन है और सिमिलर उसका एडजेक्टिव है।
यस, तो ये हो गया आपका B2। नेक्स्ट वी कम टू द C1 नंबर, इसको लिख लो बुक में ही। C1 सॉरी, ये B1 नंबर था, ये वाला B1 था। B2 में क्या है? B2 इधर है, देखो, मैक्स सेंटेंसेस विद द वर्ड्स यू हैव फिल्ड इन द टेबल इन प्रीवियस। जो वर्ड हमको टेबल में लिखे हैं उसको लेके हमको सेंटेंस बनाना है, ठीक है? तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। चलो सेंटेंस बनाते हैं। पहले वर्ड में सेंटेंस बनाएंगे। ये है B2, वो वाला B1 था, करेक्शन कर देना। एज आई स्टेप्ड आउट, ये वर्ड को लेके मैं सेंटेंस बना रही हूँ। ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, आई फेल्ट दैट, आई फेल्ट दैट it was a warm day, it was a warm day। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, अगर मैं बना रही हूँ तो उसको लिख लो, इसको कॉपी में ही लिखोगे, बुक में लिखने के लिए जगह नहीं है। देन ओबीडियंस, ओबीडियंस को लेके आपको सेंटेंस बनाना है, तो क्या बोलना? ओबीडियंस इज ए ग्रेट वर्च्यू, helps us to be respectful, of others। Then next 3 number, 3 नंबर क्या है? वाइड है, वाइड को लगा के हमको लिखना है। इट इज ए लॉन्ग एंड वाइड रिवर। देन नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर क्या है? कॉन्वीनियंट, कॉन्वीनियंट को लगा के आपको लिखना है। द मेट्रो इज द metro is the most convenient mode of transport for me। Transport for me। The next 5 numbers, इसको लिख लो पहले, कॉपी में ही लिखना। नेक्स्ट 5 नंबर, नेक्स्ट 5 नंबर, एफिशिएंसी। Which efficiency he worked day in and day out। Then next 6 number, reluctance of any form is not fruitful। रिलक्टेंस को लेके यहाँ पे सेंटेंस बनाया है।
देन 7 नंबर स्प्लेंडरस को लेके सेंटेंस बना देना। द स्प्लेंडरस फोर्ट वॉच decorated beautifully. Then 8 number similarity को लगा के there is no similarity between the two situations. Between the two situations. Between the two situations. Yes. Then next number आपका है C1 नंबर. ठीक. C1 नंबर में क्या है देखो, fill in the blanks with correct pronouns. Pronouns लगाना है. ठीक है, हमको correct pronouns लगाना है. एक काम करो, इसको पहले लिख लो, उसके बाद करेंगे. हो गया लिखना. Then C1. फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन दिया है दो ठो, वहाँ से एक प्रोनाउन को चूज करके आपको लिखना है. जैसे कि यू, ई एंड डेक्स आर फ्रेंड्स. यू, ई एंड आई आर फ्रेंड्स. 1 नंबर का आंसर क्या होगा? आई. देन सेकंड नंबर क्या होगा? दिस बुक इज डेक्स. दिस बुक इज आई और दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन. देन do Dex need a table for 3? Do you need a table for 3 or do he need a table for 3? Do you. यहाँ पे क्या होगा? You. He क्यों नहीं हुआ? क्योंकि he थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. he थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अगर he होता तो हम does लगाते. इसके लिए यहाँ do लगा है, इसके लिए हम you लगाए. Do you and does he होता है. ठीक है. Next, our soldiers are better trained than decks of our enemies. Our soldiers are better trained than those of our enemies. यहाँ पे क्या होगा? Those. Then 5 number. You take decks and I will take those. You take this and I will take those. यहाँ पे क्या होगा? These. Then
Dax did you meet at the fair? Dax did you meet at the fair? Who did you या whom did you? क्या होगा? Whom did you? Whom did you meet at the fair? Then 7 number. Dax has drawn this. Who has drawn this होगा कि what has drawn this होगा? यहाँ पे क्या होगा? Who has drawn this? यहाँ पे होगा who. Then 8 number. Dax do you want to speak to? Whom do you want to speak to होगा कि who do you होगा? क्या होगा? Whom होगा. Whom do you want to speak to? ऐसा करके इसका आंसर है. पहले क्या होगा? I, then mine, then you, then those, then these, then whom, then who, and then whom. ठीक है? Then come to the C2 number. C2 number में क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन है, जो कि हम ग्रामर बुक में पढ़ चुके हैं. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ चुके हैं कि नहीं? रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट के जगह में वो प्रोनाउन रहता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. एम्फैटिक जो कि सब्जेक्ट के बाद ही रहता है उसको बोलते हैं एम्फैटिक. जैसे एग्जांपल देखो, आई माई सेल्फ शुड डू दिस. आई के बाद माई सेल्फ है, माई सेल्फ एक प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ? एम्फैटिक. पर जो लास्ट में होता है आई एंजॉयड माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट की जगह में जो है प्रोनाउन माई सेल्फ, वो होगा रिफ्लेक्सिव. समझ में आया? जो सब्जेक्ट के पास में होता है वो है एम्फैटिक, जो ऑब्जेक्ट की जगह में होता है वो है रिफ्लेक्सिव. ठीक है? देन C2 नंबर का 1. सी herself told me this. यहाँ पे क्या होगा? herself क्या होगा? यहाँ पे पास में है, सब्जेक्ट के पास में, तो यहाँ होगा एम्फैटिक. देन सेकंड नंबर, I myself believe so. I सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पास में ही है, तो यहाँ पे भी होगा एम्फैटिक. Then 3 number, the writer expresses himself perfectly. ये होगा रिफ्लेक्सिव. लास्ट में himself है, इसके लिए होगा रिफ्लेक्सिव. Then 4 number, she herself is to blame. herself सब्जेक्ट के पास में है, इसके लिए होगा एम्फैटिक. Then 5 number, the poor lady blamed herself. herself फिर लास्ट में है, इसके लिए ये भी होगा रिफ्लेक्सिव. Then we tested ourselves rigorously. यहाँ पे भी we tested ourselves मतलब ऑब्जेक्ट की जगह में है ourselves, इसके लिए ourselves क्या है? प्रोनाउन है, तो इसके लिए ये भी होगा रिफ्लेक्सिव. तो पहला का होगा एम्फैटिक, दूसरा का भी एम्फैटिक, तीसरा भी होगा आपका रिफ्लेक्सिव, फोर्थ होगा एम्फैटिक, फिफ्थ होगा रिफ्लेक्सिव, सिक्स भी होगा रिफ्लेक्सिव. सो ऐसे करके क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा. जैसे एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव दो प्रोनाउन है. ठीक है? एम्फैटिक कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद में जो प्रोनाउन रहता है वो होता है एम्फैटिक, और लास्ट में जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? आपका चैप्टर 17 का खत्म होता है, लेकिन मैं एक बार सबको समझा देती हूँ करके, लिख के. एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का इधर लिख देती हूँ. I enjoyed myself. मैं एंजॉय कर रहा हूँ खुद ब खुद, तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव. क्योंकि देखो ये माई सेल्फ जो प्रोनाउन है ये कहाँ पे है? लास्ट में है, ऑब्जेक्ट के जगह में है. पर जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के पास होता है, जैसे मैं बताती हूँ, आई माई सेल्फ शुड डू दिस.
should use। यहाँ पे देखो माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ प्रोनाउन है ये जस्ट सब्जेक्ट के साइड में ही है, ये जस्ट सब्जेक्ट के साइड में ही है, तो ये कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये क्या होगा? ये होगा एम्फैटिक। समझ में आया? ये जो माई सेल्फ है ये लास्ट में है, इसके लिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव, और ये जो सब्जेक्ट के साइड में ही है उसके लिए ये हो गया एम्फैटिक। तो ये हुआ आपका एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस। देन मैं आपको एक बार समझाऊंगी क्या नाउन एंड एडजेक्टिव कोलोकेशन, और नाउन एंड एडजेक्टिव कैसे, नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनता है। देखो नाउन तो बहुत सारा होता है, नाउन से एडजेक्टिव कुछ कुछ बनता है, तो क्या क्या बनता है देखते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एक नाउन है, टेक्नोलॉजी एक नाउन है, वहां उससे हम बनाना है तो क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल बना, नाउन से एडजेक्टिव बना। ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। जैसे नेचर, नेचर से क्या हो रहा है? नेचुरल। नेचर से क्या होगा? नेचुरल। ठीक है। देन ट्रेडिशन से क्या होगा? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन से क्या होगा? ट्रेडिशन से होगा ट्रेडिशनल। देन होगा लर्नर, लर्नर से क्या होगा? लर्न। लर्नर से क्या होगा? लर्न। देन एजुकेशन, एजुकेशन से क्या होगा? एजुकेशनल। एजुकेशन से क्या होगा? एजुकेशनल। देन इमोशन से क्या होगा? इमोशन से होगा इमोशनल। इमोशन से होगा इमोशनल। ठीक है। तो ऐसे नाउन से एडजेक्टिव होता है। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे वार्मथ है। क्या है? वार्मथ। वार्मथ से क्या होगा? वार्म। क्या होगा? वार्म। देन ओबीडियंस से होगा ओबीडियंट। ओबीडियंस से होगा ओबीडियंट। देन विड्थ से होगा वाइड। विड्थ से होगा वाइड। देन कन्वीनियंस, कन्वीनियंस से होगा कन्वीनियंट। कन्वीनियंट। देन एफिशिएंट से होगा एफिशिएंस। एफिशिएंस से होगा एफिशिएंट। देन reluctance से होगा reluctant। reluctance से होगा reluctant। देन स्प्लेंडर से होगा स्प्लेंडरस। स्प्लेंडर से होगा स्प्लेंडरस।
स्प्लेंडर से क्या होगा स्प्लेंडरस, देन सिमिलैरिटी से होगा सिमिलर, सिमिलैरिटी से होगा सिमिलर। ठीक है, तो ऐसे करके हम नाउन से एडजेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 70 का एक्सरसाइज खत्म हुआ। क्वेश्चन हमने डिस्कशन करा दी, उसको ध्यान से सुनो, कॉपी में मेंशन करो, कॉपी में क्वेश्चन भी लिखो, कॉपी में आंसर भी लिखो। ठीक है, और जो बुक में कर पाओगे उसको बुक में करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।